मॉर्निंग सर। अमन, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है। So today we will be having our last class officially of this. I mean, from the sequence of lectures that we had to complete, and there is a small possibility that after your midterms, your classes might continue. If that happens, then we will cover the remaining syllabus in that time. Otherwise, in the two lectures that we will be taking today, this one and the next one at 12:30 p.m., I will cover all the syllabus that is going to come in your second midterm. So whatever has not been taught to you till now, or whatever the remaining syllabus is, that will not be asked in your second midterm. First thing. So let me clearly tell you which are the small topics that we are still to cover. One is from this module number 6, that is the last section. You have torsional this one, vibrations of geared systems. This is a small topic, and not a single question has been asked from this topic in the history of vibration engineering. I'm serious, literally in the history of vibration engineering, no question has ever been asked in the RTO exam. So obviously this is of lesser importance, and the next topic is generalized coordinates and coordinate coupling. This is also a small topic, and once again, not a single question has been asked in RTU till now from this topic also. But this doesn't mean that you will not get notes for this, or you will not get a lecture for this. If we have classes after the second midterm, then these topics will be covered in live classes, and obviously you will get notes also. And if there are no classes after the second midterm, which I am also not very sure of, in that case, I will prepare recorded lectures for these two topics, and then I will send you the notes along with the recorded lectures. So in any case, you will be getting the complete syllabus without missing a single portion of your syllabus, whether it is in the form of a pre-recorded lecture or whether we cover it in a live lecture. Any case, your syllabus will be 100% complete. Now, there is one part, however, that I will not be covering, and that part is this part of the first module, that is from the sound and noise part. I will be simply providing you with notes and study material. So you have to prepare your own personalized notes, and preparation has to be done by you only, because the questions from this part are almost like this. I'll show you an example. See, this is a snapshot from RTU 2013 paper. Enlist the major sources of noise in industrial and urban residential environment with approximate noise levels generated by each. Explain any one method to control noise. So you see, only theoretical questions are asked from these, and these are just like preparing for a theoretical paper. So I will not be covering this, and officially I am announcing this topic, this whole topic: introduction to noise, auditory, non-auditory effects of noise, major sources of noise, industrial noise sources, industrial noise control strategies. These topics, very small topics and very easy topics. You just have to read it as if you are reading a newspaper. Okay, so these are just fact reporting कि भाई ऐसे ऐसे नॉइस कंट्रोल की जाती है, ये फलाना फलाना स्ट्रेटजीज होती है, ये फलाना फलाना सोर्सेज होते हैं. So you have to prepare your notes on your own. I will give you the study material for this. So apart from this, we will be covering everything else. You will be getting lecture notes and lecture recordings for all the other topics. Anyway, right now, let us continue with what we have been studying in the last class. In the previous class, Aja, one more thing. Yesterday,
The attendance was very low. Today also it is very low, but I would just like to state it for record that whatever is being taught in this class and the next class at 12:30 p.m. there are some numericals also. So you will be getting numericals from these portions in your exam. So you have to prepare the topics of these two lectures. These are important. And numericals and questions from these topics always come in your RTO exam. So please pay close attention and try to learn how it is done. Okay. Anyway, yesterday we learned about the decibel system, and then we created decibels for sound power, sound intensity, and sound pressure. Let us rephrase or just revise what we have done till now. Sound power level is abbreviated as SWL. The notation that we use for it is L suffix W. And the formula for this is 10 log to base 10, the actual power in wattage or in watts divided by the reference power value. And with this, you have to remember this also. What is the reference power value? It is 10 raised to power minus 12 watts. Similarly, we have, and also you have to remember this whole thing when you calculate, the answer will be in decibels. Similarly, we have sound intensity level. It is denoted by L suffix I, and the formula for this is very similar, 10 log to base 10. The actual intensity you want to measure divided by the reference value of intensity. Again, when you calculate this, you will get the answer in decibels, and for record, the reference value of intensity is always taken as 10 raised to power minus 12 watts per meter square. And finally, we have sound pressure level. This is denoted by L suffix P. And as expected, we would continue to make a formula 10 log to base 10. But there is a difference that comes here. Instead of P by P reference, we have to write P square by P reference square. This is the difference. So in the other two sound levels, that is sound power level and sound intensity level, we simply have the ratio of power, we simply have the ratio of intensity, but for sound pressure level, we have the ratio of the square of pressure. This is something that you have to remember. So either you can remember this formula like this, or by making use of the law of logarithms, you can remember it like this. Now this will become 20 log to base 10. And now once you have taken the power 2 outside the log, now what remains inside is P by P reference. So if you want to remember the ratio as simply P by P ref instead of P square by P reference square, then you have to remember to take 20, the factor of 20 here instead of 10. Again, this is in decibels. So this is optional, which way you want to remember it, this one or this one. But I prefer to remember both of these because at any instance of time, both of these formulae can come in handy depending on the situation. Okay, so this is what we have learned till now, that sound has got three parameters that can actually be measured. Obviously, there are four frequencies also there, but we are talking about the three parameters other than frequency. That is power of the sound, intensity of the sound, and pressure of the sound. So these are the mechanisms by which we can convert the readings of pressure, intensity, and power into decibels. Okay. And now a very, very important but very simple derivation.
that is relationship between sound power level, sound intensity level, and sound pressure level. How are these three related with each other? So this is a small derivation which is almost self-intuitive in nature. So that means if you look at it, you would be easily able to reproduce the entire derivation in your examination. इसको इतना मन लगा कर रटने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इंट्यूशन से ही आपको ये डेरिवेशन याद हो जाएगा. अब देखिए how. The first derivation is to derive a relationship between sound power level and sound intensity level. SWL और SIL में relationship निकालेंगे, और दूसरा derivation है sound intensity level और sound pressure level में relationship निकालेंगे. तो ये दो relation मिल गए तो ये तीनों आपस में relate हो ही जाते हैं, right? So sound power level as per the definition is given by this formula. ये अपन को पता ही है. Now we recall कि ये इंटेंसिटी क्या होती है. इंटेंसिटी इज पावर इन वॉट्स पर यूनिट सरफेस एरिया, राइट? बट whenever somebody speaks about a surface area, the first thing that comes to mind is a flat area like this. But in the case of sound, this is not the area we are talking about. Okay, why? Because for any source of sound, let us say we have a loudspeaker here and it is emanating sound. Any source of sound you take, the sound waves are emanated from the source in the outward direction in the form of concentric spherical bubbles. So the sound waves travel in all directions, three-dimensionally. It is not like a vector which is simply traveling along a straight line. Okay, sound from any source, if you try to produce, it will travel outwards in the form of an expanding bubble. एक बुलबुले की तरह से साउंड की एनर्जी चारों दिशाओं में, थ्री डायमेंशनली, ऊपर नीचे आगे पीछे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब डायरेक्शंस में इक्वली स्प्रेड होगी. So the surface area that we are talking about is basically the surface area of a sphere. और स्फीयर का सरफेस एरिया, अगर उस स्फीयर का रेडियस r होता है, then the surface area of the sphere is 4 pi r square. This you all know from your mathematics lessons. तो अब इस लॉजिक को यूज करते हुए जब अपन साउंड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो सरफेस एरिया फ्लैट नहीं है, सरफेस एरिया स्फेरिकल एक बॉडी का आउटर सरफेस एरिया की बात हो रही है. So we select S to be replaced with 4 pi r square. And now, if intensity is written as W by S, then W by W reference can be written as this. ठीक है? W को अपन I into S लिखेंगे और W ref को अपन I ref into S ref लिखेंगे. ये सिंपल सा रिप्लेसमेंट किया. अब उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू सिंपली मेक ब्लॉक्स ऑफ दीज टू. इनको कंबाइन करिए ऐसे. अब ये देखो, नाउ अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ योर लॉगरिथम व्हिच सेज कि अगर आप किसी भी चीज का लॉग ले रहे हैं और वो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ a into b, then you can write it as log of a plus log of b. So using this law of logarithms, you separate this product and write it like this. And now you see that the first block that comes out of this is nothing but the sound intensity level. This is the definition of sound intensity level. And internationally, it has been chosen to select the reference surface area of that of an imaginary spherical bubble which has an overall surface area of 1 meter square. तो S reference को अपन 1 meter square मान लेते हैं. ठीक है? तो यहां पर ये तो 1 हो गया, तो ऊपर रह गया सिर्फ S. So this is the relationship between sound power level and sound intensity level. यानी कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे साउंड पावर लेवल निकालनी है और साउंड इंटेंसिटी लेवल पता है,
तो सोर्स से डिस्टेंस पता करके सरफेस एरिया निकाल लो बबल का, और उसका 10 log 10 s ले लो और साउंड इंटेंसिटी लेवल के साथ में ऐड कर दो. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ साउंड पावर लेवल इन डेसिबल्स. प्लीज रिमेंबर, ये LI, LW, LP ये सारी चीजें डेसिबल में मेजर हो रही हैं. ये अभी इंटेंसिटी की यूनिट नहीं है इसकी, LW की यूनिट वॉट्स नहीं है. all the levels SPL, SWL, SIL they are all measured in decibels. ठीक है, तो इंटेंसिटी लेवल की डेसिबल्स के साथ में ये वैल्यू अगर ऐड कर दी जाए तो पावर लेवल की डेसिबल्स मिल जाती है. ये बता रहा है आपको ये रिलेशनशिप. नाउ सिमिलरली, so this derivation, as I've told you, you have to remember, it is important, it is asked many times in exams. तो ये कॉमन क्वेश्चन है, आता ही है, तो ये डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए. डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड पावर लेवल एंड साउंड इंटेंसिटी लेवल. नेक्स्ट डेरिवेशन आल्सो अ वेरी सिंपल डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड इंटेंसिटी लेवल एंड साउंड प्रेशर लेवल. तो अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले साउंड इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला लिखा, ये है. देन वी रिकॉल दैट इंटेंसिटी as a function of pressure is given by this relationship. ये अपन ने पिछली क्लास में कवर किया था. ठीक है, so wherever you find I, you replace with this expression, p square by rho v लिख दो. तो I जो है वो p square by rho v हो गया, नीचे I रेफरेंस आ गया. ठीक है, I रेफरेंस को अभी अपन ने एक्सपैंड नहीं किया. अब उसके बाद क्या किया अपन ने, हमने ऊपर और नीचे P रेफरेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया. यहां पर भी P रेफरेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी P रेफरेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया. एंड इवेंचुअली इससे अपन इस कंप्लीट ब्लॉक को ऐसे ब्रेकअप कर सकते हैं इनटू 2 ब्लॉक्स लाइक दिस. ठीक है, so eventually we have to take 10 log 10 of this set of 2 blocks. अब उसके बाद अपन ने देखा कि भाई P रेफरेंस हमें पता है, I रेफरेंस हमें पता है, तो ये वैल्यूज अपन डाल देते हैं. P रेफरेंस कितना है, 2 into 10 to power -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑल्सो. I रेफरेंस कितना है ये भी आपको याद रखना है, मैंने बताया है 10 to power -12 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर. एंड the characteristic impedance rho v also we know, and अपने नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP पे रो कितना होता है, NTP पे v कितना होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 415 आता है. ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस डेरिवेशन में ये काम आता है. सो हैव टू रिमेंबर दिस. और ये नोट्स में दे रखा है ये 415 कैसे आया. यू रेफर द प्रीवियस नोट्स और द क्लास दैट आई टुक यस्टरडे. ये देखो, this is the value of density at NTP, velocity at NTP. You multiply this, you get 450. This is a constant. तो जो constant values हैं उसको अपन ने put कर दिया I ref, P ref and rho v. तो ये सारी चीजें जब आप put कर दोगे, eventually what you get is, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो 2 ब्लॉक्स आए थे उनको अपन ने लॉगरिथम से सेपरेट किया है. तो P स्क्वायर बाय P रेफ स्क्वायर तो सबसे पहले अपन बिना छेड़े LP करके लिख देंगे क्योंकि ये आपके साउंड प्रेशर लेवल की डेफिनेशन ही खुद है. अब यहाँ पर अपन P रेफ की वैल्यू रखेंगे, I रेफ की वैल्यू रखेंगे और रो V की वैल्यू रखेंगे. ये सारी वैल्यू रख करके log to base 10 और 10 से मल्टीप्लाई करके इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे. You will see that this entire block gets solved and you get a value of -0.16. तो कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर साउंड प्रेशर लेवल LP मुझे पता है डेसिबल्स में, तो उसमें से सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू 0.16 को माइनस कर दो तो साउंड इंटेंसिटी लेवल मिल जाएगी डेसिबल्स में. एंड scientists have decided कि ये जो difference है this is very negligible. Even in decibels this is negligible. So it is eventually decided कि sound intensity level और sound pressure level को differentiate करो ही मत.
सीधे सीधे ये बोल दो कि किसी एक जगह पे कितना साउंड प्रेशर लेवल आ रहा है। बोला साहब 40 डेसिबल आ रहा है, तो बोला कि साउंड इंटेंसिटी लेवल कितनी होगी, 40 ही है, खत्म बात। और बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो फिर साउंड प्रेशर लेवल में से 0.16 माइनस कर दो, तो एग्जैक्ट इंटेंसिटी लेवल भी मिल जाएगी। बट इन जनरल प्रैक्टिस वी चूज टू टेक दीज टू इक्वल टू ईच अदर, बस सिंपल सी बात। ठीक है, ओके। भी देखें who all are attending the class। ओके, अमन आपको समझ में आ गया अभी तक जो बता रहे हैं? इज इट Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. ओके ओके, सिंपल टॉपिक्स हैं और हर साल आती हैं, तो ये साउंड वाला टॉपिक तो आपको हर हालत में पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। सो इवेंचुअली अपने पास दो रिलेशनशिप्स आ जाती हैं। ये डेरिवेशंस तो आपको याद रखनी ही है, लेकिन साथ में ये दो रिलेशनशिप्स भी याद रखनी है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो अभी अपन ने कौन सी दो नई रिलेशन सीख ली, लेट मी जस्ट जॉट इट डाउन सो दैट वी कैन यूज इट फॉर आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। LW is equal to Li plus 10 log 10 of the surface area, and the second one is intensity level or sound intensity level Li is equal to Lp minus 0.16, or you simply write Li equal to Lp. So this is what we are talking about. पहला डेरिवेशन पहला फॉर्मूला, दूसरा डेरिवेशन दूसरा फॉर्मूला। आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ क्लैरिटी। या तो ऊपर वाला यूज कर लो, या फिर यू सिंपली से दैट Li इज नियरली इक्वल टू Lp, तो हम तो बराबर ही कर रहे हैं साहब, अप्रोक्सीमेट करके बराबर कर दिया दोनों को, काम खत्म। ठीक है, एंड नाउ लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। Read this question, example 9.1. This is from your textbook of A.B. Ambedkar। अंबेडकर की जो बुक आपके पास में है, उस किताब में से लिया हुआ क्वेश्चन है। Show that as the distance from a point source doubles, the sound intensity level decreases by 6 decibel। ठीक है, तो आपको यह पता करना है कि जैसे ही डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स डबल हो जाती है, साउंड इंटेंसिटी लेवल 6 डेसिबल से डिक्रीज हो जाती है। तो अब सबसे पहले तो अपन ये देखें, साउंड इंटेंसिटी लेवल Li का फॉर्मूला क्या है? टेन log to base 10 ओके। अब उसके बाद आता है कि आपका सोर्स से, let us take a source, you are standing here, let us say the distance is r, okay। So at this point the surface area of your bubble is 4 pi r square। Now the question says, show that as the distance from a point source doubles, so that means now the second case you are taking the same source of power, and now you are taking a distance of 2r। So obviously you have to take a new spherical surface, and now the surface area is 4 pi 2r square। ठीक है, अब देखो इन दोनों केसेस में आई रेफरेंस को कैलकुलेट करते हैं, या सॉरी Li को कैलकुलेट करते हैं। साउंड इंटेंसिटी लेवल की बात कर रहे हैं अपन, वी आर टॉकिंग अबाउट
sorry, where is the question? Show that as the distance doubles, the sound intensity level decreases by 6 decibels. ये प्रूव करना है अपने को, ठीक है? तो साउंड इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, 10 log 10. I लिखने की बजाय मैं लिखूंगा W अपॉन S, और नीचे अपना IREF है. अब चूंकि IREF तो कांस्टेंट है तो उसको मैं छेड़ूंगा ही नहीं, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ, फर्स्ट सरफेस एरिया S1, यहां पर अपन सरफेस एरिया को S1 ले लेते हैं, सो दिस इज S1. और यहां पर सेकंड वाले केस में वेयर द डिस्टेंस हैज डबल्ड, योर साउंड इंटेंसिटी लेवल इज नाउ 10 log to base 10. पावर तो वही है क्योंकि सोर्स सेम रखा है आपने. आप उस सोर्स से दूर जा रहे हो या पास आ रहे हो, उससे साउंड की जो पावर इमेनेट हो रही है वो तो चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए W विल बी द सेम. But since you are going away and you are at a double distance, the surface area of the bubble changes. So now you are talking about S2. तो यहाँ पर W by S2 आ जाएगा. और I reference तो इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 10 raised to power minus 12. तो इसको अपन चेंज नहीं करेंगे, दिस इज द सेम. अब मेरे को ये बताओ, आपको ये पता करना है कि साउंड इंटेंसिटी लेवल इन फर्स्ट केस ये है और साउंड इंटेंसिटी लेवल इन सेकंड केस ये है. एंड द क्वेश्चन इज प्रूव दैट जैसे ही आपने डिस्टेंस को डबल किया, साउंड इंटेंसिटी लेवल 6 डेसिबल से कम हो जाती है. ये प्रूव करना है आपको, ठीक है? सो बेसिकली व्हाट यू आर आस्क्ड टू प्रूव इज दैट sound intensity level at the second point is sound intensity level at the first point minus 6 decibels. ये प्रूव करना है आपको. This is what you have to prove. ये समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, और अपन कैसे इसको डील कर रहे हैं? Did you understand this or not? Yes, sir. ठीक है. अब यहाँ पे मैं आपको खुद करने के लिए छोड़ सकता हूं इस क्वेश्चन को. यू शुड बी, इतना बताने के बाद तो अब आपके हाथ में क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए. बट सिंस यू आर एनकाउंटरिंग ऑल दिस स्टफ फॉर द फर्स्ट टाइम, आई विल क्विकली शो यू हाउ टू डू इट. आप तो सिर्फ ये बताओ S1 और S2 के बीच में कितना मल्टीप्लायर का इफेक्ट फर्क है, या फिर S2 जो है वो S1 का कितना गुना है? 4 times. 4 टाइम्स है. तो क्या मैं यहां पर एक छोटा सा चेंज कर सकता हूं? इंस्टेड ऑफ राइटिंग S2 हियर, कैन आई रिप्लेस इट विथ 4S1? Yes, sir. ये हो गया फर्क. अब अपन देखें Li1 जो है दैट इज 10 log 10 W upon S1 IREF. Li2 जो है दैट इज 10 log 10 W अपॉन S1 IREF. ये चीजें तो वही सेम है, प्लस एक मल्टीप्लायर है 1/4 का. तो अब देखो मैं Li2 को कैसे लिखने जा रहा हूं. आई एम राइटिंग दिस एज 10 log to base 10 of 1/4 multiplied by W by S1 IREF. 2 ब्लॉक्स में सेपरेट कर दिया, ठीक है? अब इस पे मैं लॉगरिथम का नियम लगाऊंगा. सो दिस विल बी 10 log 10 of 1/4 plus 10 log 10 of W by S1 IREF. Now 10 log 10 W upon S1 IREF is nothing but your Li1 itself. तो कुल मिलाकर के ये बात हो गई, Li in the second case is equal to Li in the first case plus 10 log to base 10 of 1/4. इसको जरा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताओ. आपके कैलकुलेटर में जो बटन्स हैं उसमें एक बटन आपको दिखेगा Ln लिखा हुआ, दैट इज log to base E. दूसरा बटन दिखेगा सिंपली log लिखा हुआ, उसमें बेस कुछ नहीं होगा.
but the button that shows simply log is actually log to base 10. ताकि आपको confusion नहीं हो, ये मैंने बता दिया. The buttons on your calculator would be looking like this. So please tell me what is the value of 10 log 10 of 1 by 4. So minus 6.02. Minus 6 आ गया. Yes, sir. And that is exactly what you wanted to prove, right? Show that as the distance from a point source doubles, the sound intensity level decreases by 6 decibels. आ गया ना? Next वाला question देखिए. At a distance of 4 meter from a point source, बना लेते हैं इसको. Point source है, उससे कितनी दूरी की बात कर रहे हैं? They are talking about 4 meter distance. The sound pressure level is 92 decibels. Assuming a free progressive spherical wave and standard atmospheric conditions, calculate the sound power level of the source. देखो, अच्छा खासा एक क्वेश्चन है जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, 92 डेसिबल्स साउंड प्रेशर लेवल दे रखा है, यानी कि ये जो 92 डेसिबल है ये SPL है, साउंड प्रेशर लेवल. ये बोल रहे हैं कि उसी पॉइंट पे खड़े रहो 4 मीटर दूरी पे और ये बताओ कि वहां पे साउंड पावर लेवल कितना है, SWL कितना है. ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस केस. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्फेरिकल एनवेलप लाइक दिस, 4 मीटर की दूरी पे. ये आपका पॉइंट सोर्स है. You are standing here, and when you are standing here, the SPL was 92 decibels. और ये पूछ रहा है यहीं पर बताओ SWL कितना है. Now what we have to do is, in this case, देखो कभी भी SPL देके SIL पूछ ले, SIL देके SPL पूछ ले, या कोई भी एक लेवल दे करके कोई दूसरे लेवल की बात करे, तो हमेशा आपको सिंपली ये याद रखना है कि आपने जो दो डेरिवेशंस करके रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल्स निकाला था, उनको यूज करना है. देखो, पहला रिलेशनशिप साउंड पावर लेवल और साउंड इंटेंसिटी लेवल के बीच में है, और दूसरा रिलेशनशिप साउंड इंटेंसिटी लेवल और साउंड पावर लेवल, सॉरी साउंड प्रेशर लेवल के बीच में है. लेकिन अपने पास साउंड प्रेशर और साउंड पावर को रिलेट करने वाला कोई रिलेशनशिप नहीं है. कोई बात नहीं, 3 आइटम है और उन तीनों में से 2 के बीच की रिलेशनशिप अगर इस तरीके से दे रखी हो, पहले और दूसरे का, दूसरे और तीसरे का, तो पहला और तीसरा तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो साउंड प्रेशर लेवल दे रखा है. वी विल यूज द कॉन्सेप्ट दैट साउंड इंटेंसिटी लेवल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साउंड प्रेशर लेवल. पहला ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो अपन ने क्या कहा, यहां से LP को तो हटा दो, हम मान रहे हैं हमें साउंड इंटेंसिटी ही दे रखी है. अब आपको साउंड इंटेंसिटी और साउंड पावर के बीच में रिलेशनशिप ऑलरेडी पता है, तो अब आपको ये चीज लेके आनी है. तो पहली चीज आप क्या कर रहे हो, सबसे पहली चीज तो आप ये बोल रहे हो कि SPL दे रखा है ना आपने 92 डेसिबल, आई एम टेकिंग दिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू SIL. काम ही खत्म हो गया. ठीक है, अब SIL और SWL के बीच में क्या रिलेशनशिप है? देखो, SIL को अपन LI लिखते हैं और SWL को अपन LW लिखते हैं. ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप अपन को पता है, LW इज इक्वल टू LI प्लस 10 log 10 ऑफ द सरफेस एरिया. ये रिलेशनशिप है अपना. इसको याद रखना है आपको. तो यू रिकॉल्ड इट फ्रॉम मेमोरी. SPL दे रखा था, आपने बोला SPL और SWL का रिलेशनशिप तो पता नहीं, लेकिन ये पता है कि SPL और SIL ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो वही मान लिया हमने, SIL ही मान लिया. अब SIL और SWL का रिलेशनशिप पता है, ये लिख दिया. LI या SIL कितना है? दिस इज 92 डेसिबल्स प्लस 10 log 10. अब ये मेरे को बता दो इस S के अंदर मैं क्या लिखूं. Look at the figure and tell me what is the value of S. So 4 pi r square.
R कितना लेंगे? 4। बस इतना सा गेम है इसमें। 4 पाई इंटू 4 स्क्वायर, ये चीज आप इसमें पुट करिए, इसको पूरा सॉल्व करिए और बताइए कि साउंड पावर लेवल कितना है SWL डेसिबल्स में। बताइए, आंसर बताइए। सर 115.03। 115.03 डेसिबल्स आपका आंसर करेक्ट है। यू गॉट द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर RTO एग्जाम। द ओनली थिंग इज ये सरफेस एरिया और बबल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सरफेस एरिया इन द केस ऑफ साउंड वेव्स इज ऑलवेज टेकन एज द एरिया ऑफ अ स्फेरिकल एनक्लोजर। ठीक है, फ्लैट सरफेसेस नहीं है साउंड के केस में, और इसका रीजन ये है कि किसी भी सोर्स से साउंड जो है चारों दिशाओं में फैलती है, इसीलिए चारों दिशाओं में इक्वली फैलती हुई चीज हमेशा एक स्फेरिकल फॉर्म लेती है। ओके, now even more important is the next topic, how to add, subtract and average decibel values। कोई सी भी चीज डेसिबल की दे दी तो आप अब देखो, ये डेसिबल एक ट्रिकी यूनिट है। जैसे आपको ये बोला गया कहीं पे, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिबल्स का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। पहले आपको अगर कोई कहे कि भाई एक जगह है या एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उस एरिया पे प्रेशर की वैल्यू जो है वो 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। फिर बोला कि आपने उस एरिया पे थोड़ा और प्रेशर डाला, एक नया प्रेशर डाला, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एडिशनल प्रेशर डाला। सो नाउ व्हाट इज द टोटल प्रेशर? Nobody would hesitate even for a second in saying that total pressure is equal to 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐड हो जाती है। तो अगर आप प्रेशर किसी एक एरिया पे बढ़ाओ तो प्रेशर ऐड हो जाती है, इंटेंसिटी किसी एक एरिया पे बढ़ाओ तो इंटेंसिटी ऐड हो जाती है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ साउंड वेव्स इट इज नॉट लाइक दैट। साउंड वेव्स का जो प्रेशर है, आप करना क्या चाहते हैं, आपने बोला कि मेरे पास एक सोर्स है जो साउंड वेव्स भेज रहा है, आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, एक दूसरा सोर्स है जो साउंड वेव्स भेज रहा है, तो आपके पास दो सोर्स से साउंड वेव्स आ रही है, और आपसे ये कहा गया कि पहली साउंड वेव की जो SPL है ये 90 डेसिबल्स है, और दूसरे साउंड वेव की जो SPL है, SPL क्या होता है, साउंड प्रेशर लेवल, ठीक है, ये 80 डेसिबल है। तो अब ये बताओ कि अगर मैं दोनों साउंड वेव एक साथ चालू कर दूं तो इस आदमी को कितने डेसिबल की SPL सुनाई देगी? इसका आंसर 90 + 80 नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम विद द डेसिबल स्केल। तो अगर कोई सिंपल यूनिट होती है, मीटर और मीटर है, ऐड कर दो, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है, ऐड कर दो, प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐड कर दो, इंटेंसिटी है वॉट पर मीटर स्क्वायर, ऐड कर दो, पावर है, ऐड कर दो। कोई भी यूनिट इस दुनिया की अगर सेम होती है तो आप आंख बंद करके उसको ऐड कर सकते हैं, डेसिबल को नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है। यू कैनॉट से दैट एक सोर्स से 90 डेसिबल आ रही है, दूसरे सोर्स से 80 डेसिबल आ रही है। हो सकता है और भी मल्टीपल सोर्सेस आ जाएं, 3-4 सोर्सेस से साउंड आपको दें कि भाई इतने 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 डेसिबल पे साउंड आ रही है। बताओ तुमको टोटल कितना SPL सुनाई दे रहा है? ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब करेंगे क्या भाई? कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना। अब मेरे को आंसर तो दो इसका। अगला क्वेश्चन आप यही पूछोगे कि भाई आपने बोला कि सीधे नहीं ऐड कर सकते, तो क्या करें? एक 90 दे दिया, एक 80 दे दिया, तो मेरा टोटल SPL कैसे निकालूं? इसका मैकेनिज्म अब अपन समझने जा रहे हैं। हियर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एवरेजिंग व्हेन द यूनिट इज इन डेसिबल्स।
तो अब आप देखो, सबसे पहले तो अपन यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर मल्टीपल सोर्सेस। जैसा मैंने कहा, एक से ज्यादा सोर्सेस से साउंड आपके पास आ रही है। कितने सोर्सेस हैं? n नंबर ऑफ सोर्सेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू n नंबर ऑफ सोर्सेस से इंडिविजुअल सोर्सेस जो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं, उनकी साउंड प्रेशर लेवल्स दे रखी है, LP1 LP2, ये सारी डेसिबल्स में आपके पास आ रही है। जैसा मैंने यहां पर आपको फिगर में दिखाया था, एक से आ रही है, ये LP1 90 है, LP2 80 है, और इस तरह से n नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास में साउंड लेवल्स आ रही है। ठीक है, SPLs आर नॉट एडेड डायरेक्टली, ये तो बता ही दिया, बट इंटेंसिटीज कैन बी एडेड डायरेक्टली, राइट? जैसा मैंने आपको कहा था कि भाई अगर आपके किसी सोर्स पे कोई प्रेशर को डायरेक्टली ऐड करना हो या फिर इंटेंसिटी को ऐड करना हो, आप ये कह रहे हो कि भाई इस सरफेस पे साउंड की इंटेंसिटी जो पड़ रही है वो है 4 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, फिर दूसरे सोर्स से जो इंटेंसिटी इस पे पड़ रही है वो है 2 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। तो ये बताओ कि दोनों सोर्स ऑफ साउंड से टोटल इंटेंसिटी इस सरफेस पे कितनी पड़ रही है? इसका आंसर 100% 6 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिट आपकी वॉट पर मीटर स्क्वायर है, इसको ऐड कर सकते हो, डेसिबल को नहीं कर सकते थे। तो अगर आप इंटेंसिटी को अलग से नापो, उसको डेसिबल में कन्वर्ट करने से पहले, तो जो मल्टीपल सोर्सेस से जो इंटेंसिटी आ रही है उसको सीधे ऐड कर सकते हो। नाउ यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर सेइंग इज कि भाई ये LP1 LP2 तो डेसिबल में दिया आपने मुझे, इनको तो छोड़ो अभी। आप तो ये बताओ फर्स्ट सोर्स से एक्चुअल इंटेंसिटी इन वॉट पर मीटर स्क्वायर कितनी आ रही है, सेकंड सोर्स से वॉट पर मीटर स्क्वायर कितनी इंटेंसिटी आ रही है, एंड सो ऑन अप टू nth सोर्स कितनी इंटेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर आ रही है, बता दिया। तो इसको तो ऐड कर सकता हूं और इसको ऐड करके बोल दूंगा कि हाँ भैया मेरे को टोटल साउंड इंटेंसिटी इतनी सुनाई दे रही है, कितनी? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब देखो अपन को क्या करना है, अपन को डेसिबल एडिशन का एक मैकेनिज्म निकालना है। तो ये तो बात अभी इंटेंसिटीज की हुई, सो वी विल फाइंड अ ट्रिकी वे टू इवेंचुअली घूम फिर के अपन डेसिबल्स पे पहुंच जाएं। अब देखो कैसे, इंटेंसिटी को मैं P बाय रो वी कभी भी लिख सकता हूं, P बाय रो वी नहीं, P स्क्वायर बाय रो वी। सो इफ द फर्स्ट सोर्स इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो P1 स्क्वायर बाय रो वी, सेकेंड सोर्स का P2 स्क्वायर बाय रो वी। अच्छा, ये रो 1 V1 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये रो और V जिस एटमॉस्फेयर के अंदर साउंड ट्रेवल कर रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। तो ये चेंज नहीं होगी, हवा तो वही है, अलग अलग सोर्सेस से आपके पास आवाज आ रही है लेकिन उसी हवा से ट्रेवल करके आ रही है, तो उस हवा की कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस तो कांस्टेंट है। तो ये रो वी नीचे कांस्टेंट हो गया। तो आई टोटल को मैं लिख रहा हूं P स्क्वायर, ये P पता नहीं मेरे को क्या है, P स्क्वायर बाय रो वी, और इंडिविजुअल इंटेंसिटीज को मैंने P1 स्क्वायर बाय रो वी, P2 स्क्वायर बाय रो वी प्लस प्लस करके ऐसा लिख दिया। अब जैसे ये लिखा, इवेंचुअली ये रो वी जो है दोनों साइड में कैंसिल हो जाएंगे। सो आई एम लेफ्ट विथ दिस एक्सप्रेशन कि टोटल द सम ऑफ प्रेशर स्क्वायर्ड फॉर ऑल द सोर्सेस कैन बी टेकन एज द ओवरऑल प्रेशर का स्क्वायर। अब मैंने एक और ट्रिक लगाया इसमें, P रेफरेंस तो कांस्टेंट है ही, तो P रेफरेंस का स्क्वायर से लेफ्ट साइड और राइट साइड को पूरा डिवाइड कर दिया। अब देखो मेरे पास ये रेशियो आ गया। सो दिस रेशियो, ओवरऑल accumulated ratio is equal to the sum of individual ratios like this। और उसके बाद फिर हमने एक लॉजिक और लगाया कि भाई ये रेशियो कहीं देखा हुआ लग रहा है। कहाँ देखा है अपन ने? हमने कहा यार ये तो साउंड प्रेशर लेवल LP जो है, अगर कोई भी एक सोर्स, ith सोर्स का मैं साउंड प्रेशर लेवल ले लूं, देन इट इज नथिंग बट 10 log to base 10 of pressure square of the ith source divided by pressure square of the reference value। यही तो है, यहां देखा है इसको। तो ये I जो है ये 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बट आई नो दिस जनरल फॉर्मूला। अब मैं चाहता हूं कि ये P स्क्वायर अपॉन P रेफ स्क्वायर को आइसोलेट करूं, तो क्या करूंगा? फर्स्ट स्टेप में इस 10 को इसके नीचे ले आता हूं,
यहां से हटा दें इसको. So this is what we have. LPI by 10 is equal to this. अब लॉगरिथम का एक नियम होता है, अगर log टू बेस a ऑफ b c है तो ये आपको पता होगा, और नहीं पता तो अब सीख लो, b इज इक्वल टू a रेस टू पावर c. ये पता है कि नहीं पता है आपको, ये बताओ. डू यू नो दिस और नॉट? Yes, sir. है ना. ये a जाकर के इसके ऊपर, इसको ऊपर लिफ्ट कर देती है c को, और ये b आइसोलेट हो जाता है, लॉग खत्म हो जाता है. सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट I am going to take this 10 to this side and push this up. तो ये क्या हो जाएगा, 10 raised to power LPI by 10. ये देखो ऊपर उठा लिया 10 ने इसको, और राइट साइड से log गायब हो जाएगा, एंड नाउ दिस बिकम्स PI स्क्वायर अपॉन P रेफरेंस का स्क्वायर. अब ये जो टर्म है, इस टर्म को अलग से याद रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. क्यों? क्योंकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में यही कॉन्सेप्ट आपके यूज होगी. सो वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि अगर मैं कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में p स्क्वायर बाय p रेफरेंस का स्क्वायर कहीं से लाना चाहता हूं तो इट इज ऑलवेज 10 रेस टू पावर LP बाय 10. ये एक एडिशनल फॉर्मूला बहुत काम का है. ठीक है, तो अब ये अपन को पता लग गया. अब अपन ने क्या किया, सिंपल हो गया वो अपने लिए काम. p स्क्वायर बाय p रेफ स्क्वायर है, उसको मैंने 10 रेस टू पावर LP बाय 10 लिख दिया. p1 स्क्वायर बाय p रेफ स्क्वायर है, उसको 10 रेस टू पावर LP 1 बाय 10 लिख दिया. एंड सो ऑन, आई कीप ऑन रिप्लेसिंग ईच ऑफ द p स्क्वायर टर्म्स लाइक दीज. ठीक है, अब ये सारे ऐड हो रहे हैं, 10 रेस टू पावर दिस प्लस 10 रेस टू पावर दिस प्लस 10 रेस टू पावर दिस. तो मैंने लिखा समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n 10 रेस टू पावर LPI बाय 10. अब i इज इक्वल टू 1 to n. ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या है, ये है. अब देखो, फिर मैंने एक नया नियम यूज किया. अभी देखो अपन कहां पर आ गए हैं, इसको मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे. आई विल शो यू द वर्किंग. 10 raised to power LP by 10 is equal to summation 10 raised to power LPI by 10. यहां पे खड़े हैं अपन अभी. अब लॉगरिथम का एक दूसरा नियम भी है. ये बोलता है कि अगर मेरे पास में a raised to power b एक वैल्यू है, और अगर मैं इस चीज का log टू बेस a ले लूं तो क्या आएगा, आप कोई याद करके बता सकते हो क्या? व्हाट विल बी द आंसर? Sir, B. इट विल बी बी. तो अब इस चतुराई को यूज करते हुए मैं क्या करूंगा, इसका पूरे का log टू बेस 10 लूंगा. अब लेफ्ट साइड में लिया है तो राइट साइड में तो लेना ही पड़ेगा. This is what we are going to do next. And when you take the logarithm to base 10 on both sides, the left hand side will simply dissolve into LP by 10 again. अब ये वापस LP by 10 बन गया. इक्वल टू राइट साइड में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ब्रैकेट में कई सारे चीजों को ऐड कर रहे हो आप. So this will remain exactly the same. अब अपने पास ये एक्सप्रेशन आ गया. अब लेफ्ट साइड में अपन को ओवरऑल साउंड प्रेशर लेवल इन डेसिबल्स लेना है. तो आई टेक माय 10 एंड मल्टीप्लाई इट हियर. 10 log to base 10
summation I equal to 1 to n 10 raised to power ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। तो ये क्या कहता है ये फॉर्मूला, सिर्फ ये देख लेते हैं अपन, क्योंकि जिस फॉर्मेट में अभी रखा हुआ है इसको देख करके याद करने की इच्छा नहीं होती। क्या क्या है यार फालतू है, 10 log 10 समेशन, फिर 10 टू पावर एल पी बाई आई, तो ऐसे पता नहीं कितने फॉर्मूले आपको ऑलरेडी खूब सारे याद करने हैं। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर इस फॉर्मूले को मैं लिखने को कहूंगा तो आप फटाक से लिख दोगे। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास खूब सारे सोर्सेस हैं, 4 सोर्सेस हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और इन सब से साउंड आ रही है मेरे पास। तो यहां से जो साउंड प्रेशर लेवल है दैट इज LP1, यहां से जो साउंड प्रेशर लेवल आ रहा है दैट इज LP2, दिस इज LP3, दिस इज LP4। माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द साउंड प्रेशर लेवल LP दैट आई एम एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग, आई वांट द आंसर इन डेसिबल्स। इसके लिए आपको ये प्रिस्क्राइब्ड है कि आप ये फॉर्मूला लगाएं, लेकिन आप ये फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सिर्फ ये लिखो मेरा LP जो है 10 log 10, इतना तो याद है ही। क्यों? क्योंकि ये 10 log 10 10 log 10 पता नहीं कितने बार आ गया सारे फॉर्मूले में, ये तो रट ही गया है आपको। तो आपका आंसर है कि अगर मैं LP1 LP2 LP3 LP4 को ऐड करके LP बनाना चाहता हूं तो वो इक्वल होगा 10 log 10 ऑफ व्हाट, 10 टू पावर LP1 by 10 प्लस 10 टू पावर LP2 by 10 प्लस 10 टू पावर LP3 by 10। तो जैसा मैंने कहा था ये 10 टू पावर LP by 10 वाला जो इंडेक्स है इसको अगर आप मन में याद रख लो तो अब आपको फॉर्मूला याद रखने में आसान होगी। तो 4 सोर्सेस हैं, तो इसी तरीके से 4 सोर्सेस का आपने LP4 by 10 तक ऐड किया, इनको आप कैलकुलेटर से ऐड करें, जो वैल्यू आएगी उसका log 10 लें और उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपका डेसिबल्स में आंसर आ जाएगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। कभी भी मल्टीपल सोर्सेस से अगर आवाज ट्रैवल करके आपके पास आ रही है और डेसिबल्स में आपसे पूछा जाए कि टोटल आपको क्या सुनाई दे रहा है, तो इस तरीके से ऐड किया जाता है और उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये बोलें कि एक मशीन से मेरे पास इतनी आवाज आ रही है और दूसरी मशीन से मेरे पास इतनी आवाज आ रही है, आपको कोई कहे तुम जहां खड़े हो वहां पर तुम्हारा टोटल LP दिया हुआ है, लेट अस से 90 डेसिबल, और फर्स्ट सोर्स से जो जो प्रेशर लेवल आ रहा था दैट वाज 60 डेसिबल। तो बताओ कि सेकंड सोर्स से कितना आ रहा था। तो आपको पता है कि LP जो होगा वो क्या होगा, 10 log 10 ऑफ 10 टू पावर LP1 by 10 प्लस 10 टू पावर LP2 by 10 के बराबर है। अब इससे रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि अब LP पता है तो ये पता है, LP1 पता है, LP2 निकाल लो। या फिर उल्टा तरीका ये है कि आपको अगर एक LP2 निकालना है तो सब्ट्रैक्शन के नियम के हिसाब से ये देखो ये फॉर्मूला भी काम चल जाएगा। LP2 कैन बी डायरेक्टली रिटन एज 10 log 10 10 टू पावर LP by 10, यानी कि टोटल जो पता है, माइनस 10 टू पावर LP1 by 10, ये देखो एज सिंपल एज दैट। तो ये जो फॉर्मूला है ये एक्सपेंशन का, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पे काम करता है इस तरीके से। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि 1 और 2 का सम LP बन रहा है तो बताओ 1 दिया हुआ है 2 कितना होगा, तो या तो आप इसको रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, उससे आसान है ये कर लो, सेम चीज है ये। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ प्रेशर लेवल्स इन डेसिबल्स? Yes, sir. So we will stop the lecture here.
और उसके बाद 12:30 बजे आप लोग वापस से प्लीज लॉग इन करें, दोज हु आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टिल नाउ। या ऑलमोस्ट आपका शायद लास्ट लेक्चर होगा आज का, और आज सेकंड वाले लेक्चर में मैं आपको आरटीयू के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं और क्वेश्चंस को कैसे इंटरप्रेट करना है। दीज आर वेरी इजी, सो वंस यू अटेंड द लेक्चर यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट इन अटेंडिंग सच प्रॉब्लम्स। ठीक है, 1 मिनट आप रुकिए, आई विल टेक योर अटेंडेंस एंड देन लेट यू गो।